Hello friends, welcome to my channel Talks IMM. Today we are discussing very important topic that is bronchial asthma. First of all, in bronchial asthma, what are the learning objectives? To know the commonly used drugs in the bronchial asthma, to understand the mechanism of action of the major classes of the drug used in the bronchial asthma, and number third, to know the adverse effect of these drugs. Very important mechanism of action of major classes of the drug used in bronchial asthma and adverse effect of these drugs. These are the major learning objectives for bronchial asthma. Okay guys, then we move further. What is bronchial asthma? It is a chronic inflammatory disease, reversible episodes of the airway obstruction due to hyperresponsiveness of the tracheobronchial smooth muscle to various stimuli, resulting in bronchospasm, narrowing of the air tubes, mucosal edema, increased bronchial mucus secretions and mucus plugging. Here in this picture you can see the normal bronchioles and asthmatic bronchioles. Here is trachea and lung. What are the cardinal symptoms for bronchial asthma? Number one is breathlessness. Patient का सांस फूलना. Wheezing. You can check with stethoscope on the back of the chest. Patient is coughing and there is chest tightness of patient with bronchial asthma. What are the trigger factor for asthma? Very important. Number one, infection, irritants, pollen, house dust mites, chemical, etc. Pollutants, exercise, exposure to cold air, and psychogenic. These are very important trigger factor for asthma. Different types of asthma include acute asthma, chronic asthma, extrinsic asthma, intrinsic asthma, and there is status asthmaticus. These are different types of asthma. Then what is the pathophysiology? Inflammation underlying hyperactivity. Early reaction causes reversible airway obstruction and late reaction causes worsening of the disease. There is increased vagal discharge to bronchial muscles that will cause bronchoconstriction and increase mucus secretion. And adenosine causes bronchoconstriction. This is pathophysiology behind bronchial asthma. Approaches to the treatment: prevention of antigen antibody reactions, avoidance of the antigens that causes. Then number two, there is suppression of inflammation and bronchial hyperactivity through corticosteroid drugs. Then number three, prevention of release of mediators through mast cell stabilizer. Antagonism of release mediators through leukotriene antagonist. Then blockage of constrictor neurotransmitter through anticholinergic drugs. Mimicking dilator neurotransmitter through sympathomimetic drugs. Then directly acting bronchodilator, that is methylxanthines. What are the classifications? क्लासिफिकेशन में सबसे पहले टॉप पे हमारे पास आ जाता है फ्रेंड्स, ए पे है ब्रोंकोडायलेटर्स. उसमें आ जाते हैं नॉन सिलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आ जाती हैं, जिनमें आ जाती हैं एड्रेनालिन, एफिड्रिन, एसोप्रेनालिन. फिर हमारे पास आ जाती हैं सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग, जिनमें हम साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेट्रोल, फॉर्मोटिरोल. फिर हमारे पास आ जाती हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड, एट्रोपिन एंड मिथोनाइट्रेट. देन मिथाइलजैंथीन्स में थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोलिन एंड थियोफाइलिनेट आ जाती हैं जी. कोलिन थियोफाइलिनेट कहते हैं उनको. ठीक है. देन बी में आ जाता है कार्टिकोस्टेरॉइड. उसमें आ जाते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक में ओरल प्रेडनिसोलोन, पेरेंटल में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन. नॉन सिस्टमिक में आ जाते हैं इनहलेशनल बैक्लोमिथासोन,
फ्लूटिकासोन एंड ब्यूटिसोनाइट। फिर सी में हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आ जाता है निडोक्रोमिल, कीटोटाइफिन एंड सोडियम क्रोमाग्लाइकेट। डी में हमारे पास आ जाता है लिकोट्राइन म्यूटिलेटर्स, उसमें 5 लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिटर जिसमें जेलिटोनॉन, ठीक है। और नंबर सेकंड पे आ जाता है एल टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें आ जाता है हमारे पास जेफ्रेलिकोस्ट और मोंटेलिकोस्ट। एल टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ये 2 ड्रग्स आ जाती है हमारे पास। आगे मूव करते हैं दोस्तों। ये पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सिस्टमिक, फिर नॉन सिस्टमिक, फिर आप देख लें मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। डी में हमारे पास एल टी मॉड्यूलेटर जिसको लिकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, वो ड्रग्स 2 आ जाती हैं उसमें, जेलिटॉन्स और जेफ्रेलिकोस्ट और मोंटेलिकोस्ट। देन रोल ऑफ बीटा एगोनिस्ट इन एस्थमा, ठीक हो गया। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? Beta 2 agonists have other beneficial effects, included inhibition of mast cell mediator release, prevention of microvascular leakage and airway edema, and enhance mucociliary clearance. The inhibitor effect on mast cell action suggests that beta 2 agonists may modify acute inflammation. The role of beta agonists in asthma. You can see there is a bronchodilation, beta 2 agonist. There is a plasma exudations, cholinergic neurotransmissions, then mucociliary clearance, then neutrophil function and bacterial. Then sympathomimetic drugs. Mode of administration क्या है इनका? इनहेलेशन में मीटर डोज इन्हेलर आ जाते हैं, इसमें न्यूबलाइज़र आ जाते हैं, स्पिन इन्हेलर आ जाते हैं, रोटा इन्हेलर आ जाते हैं, स्प्रे, ओरल और इंट्रामस्कुलर आईवी इंजेक्शंस भी हैं इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक्स में। ये इनका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। एड्रेनालिन क्या है? प्रॉम्प्ट बट शॉर्ट एक्टिंग एक्शन है, रियरली यूज बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स। फिर आइसोप्रेनालिन जो है ना, प्रॉम्प्ट एंड मार्क ब्रोंकोडायलेशन करता है। डिसएडवांटेजेस क्या? टैकी कर देता है ये। फिर एफिड्रेन क्या करता है? माइल्ड स्लोली डेवलपिंग ब्रोंकोडायलेटेशन, यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एस्थमा केसेस में। सालबेटामोल इनहेल ड्रग है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यूज होता है एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में। एडवर्स इफेक्ट्स इनके क्या हैं? ट्रेमर्स हैं, टैकीकार्डिया करता है, पैल्पिटेशन करता है एंड नर्वसनेस करता है। दैन टर्ब्यूटालिन कैन बी यूज सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम यूज़ करते हैं टर्ब्यूटालिन। सालमेट्रोल स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी एंड नॉक्टर्नल एस्थमा में। फिर फार्मोटिरोल जो है ना, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लॉन्ग एक्टिंग है, यूज़ करते हैं एक्यूट एस्थमा में एंड मेंटेनेंस थेरेपी में। लिमिटेशंस क्या हैं हमारे पास? नॉन सिलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक, कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नॉन प्रेफर करते हैं एल्डर पेशेंट में या हार्ट पेशेंट में, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं जी, हम हार्ट पेशेंट में, एल्डर पेशेंट में इसको अवॉइड करते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सालब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, डिमिनिश रिस्पॉन्सिवनेस एंड वर्सनिंग ऑफ द डिजीज, दीज आर द लिमिटेशन। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आ जाती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एट्रोपिन एंड इप्रोट्रोपियम एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट पैरासिम्पैथेटिक post-ganglionic effector cell junctions by the competing with the acetylcholine for M3 receptor sites. These antagonism of acetylcholine results in airway smooth muscle relaxation and bronchodilation. This is mechanism of action of anticholinergic drugs. What are mode of administration? क्या इनका? inhalation है, slow onset of action है, better suited for regular prophylactical use. Indications क्या है? asthmatic bronchitis में देते हैं हम, साइकोजेनिक एस्थमा में देते हैं एंड सीओपीडी में। सीओपीडी में किस फॉर्म में देते हैं? न्यूबलाइज, इप्रोट्रोपियम प्लस सालब्यूटामोल रिफ्रैक्टरी एस्थमा केसेस में। देन मिथाइल जेंथीन्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज, इंक्रीज सीएएमपी एंड सीजीएमपी लेवल, ब्लॉकेज ऑफ एडिनोसिन रिसेप्टर्स। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, आईएम, आईवी, रेक्टल सपोजिटरी की फॉर्म में हम देते हैं मिथाइल जेंथीन्स।
प्लाज्मा थेरेप्यूटिक रेंज क्या है इसकी 5 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। साइड इफेक्ट जीआई साइड इफेक्ट नाजिया वोमिटिंग गेस्ट्राइटिस एग्रीवेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर। सीवीएस में टैकी करता है पैल्पिटेशन एरिथमियाज एंड हाइपोटेंशन। सीएनएस में इंसोमनिया हेडेक डेलीरियम रेस्टलेसनेस ट्रेमर डायूरिसिस फ्लशिंग। रैपिड आईवी देंगे तो सिनकपी एंड सडन डेथ भी हो सकती है। मिथाइलजेंथीन वर्सेस सिम्पैथोमाइमेटिक पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक। ब्रोंकोडायलेशन बेनिफिशियल इफेक्ट है इसका और कार्डियक स्टिमुलेशन हार्मफुल इफेक्ट है अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम देंगे इन दोनों को। देन वी मूव फर्दर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इट प्रिवेंट्स recruitment proliferation and activation of leukocytes। सिस्टेमिक स्टीरॉयड थेरेपी सीवियर क्रोनिक एस्थमा और स्टेटस एस्थमेटिक। ठीक है, इनहेल्ड स्टीरॉयड हम किस में देते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा में। अदर इंडिकेशन क्या रिनाइटिस नेजल पोलिपोसिस। एडवर्स इफेक्ट क्या इनहेल्ड स्टीरॉयड ड्राई माउथ करता है डिस्फोनिया सो थ्रोट और फ्रेंजियल कैंडिएसिस करता है। एंड सिस्टमैटिक स्टीरॉयड क्या करता है मूड चेंजेस ऑस्टियोप्रोसिस हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरटेंशन एचपी एक्सिस सप्रेशन करता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स। मैस्ट सेल स्टेबलाइजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है दे ब्लॉक आईजीई रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल्स एसेंशियल फॉर मैस्ट सेल डिग्रेनुलेशन। It prevents the release of histamine and related mediator. This is mechanism of action of mast cell stabilizer. Leukotriene modulators indication क्या है prophylactical treatment of mild to moderate asthma. Adverse effect hepatotoxic headache GI distress rashes. Zephyril leucose करता है Churg-Strauss syndrome. Treatment of status asthmaticus. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनलेशन देंगे आप सबसे पहले पेशेंट को न्यूबलाइज फॉर्म में साल्ब्यूटामोल एंड प्लस इप्रोट्रोपियम। देन सिस्टमिक स्टीरॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेनिसलोन आईवी फ्लूइड्स आप देंगे करेक्ट करेंगे डिहाइड्रेशन को। फिर पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे करेक्ट करेंगे हाइपोक्लीमिया को। सोडियम बाइकार्ब करेंगे ट्रीट करेंगे एसिडोसिस को। देन एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर स्टेटस एस्थमेटिकस कंडीशन। ड्रग कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एनसेड ऑफ ऑल टाइप एक्सेप्ट पैरासीटामोल। एंड व्हाट इज रीसेंट एडवांसेस क्या है क्रोनिक इसमें क्रोनिक एस्थमेटिक पेशेंट में या ब्रोंकियल अस्थमा में ओमेलिजुमाब एंटी आईजी एंटीबॉडी। दिस इज द रीसेंट एडवांसेस in bronchial asthma. Okay guys, this is all about today topic. If you like our video, do not forget to subscribe our channel for next video notification. Till then, take care. Allah Hafiz.